Good morning. Today we shall start one of the most relevant topic of administrative law. आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करूंगा और आज जिस टॉपिक पर हम सभी चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक जो है वह न्यायिक प्रक्रिया में या तो हम कह सकते हैं सार्वजनिक जीवन में भी उन पद्धतियों का पालन करना अति आवश्यक है यदि आप कोई काम चाहे वह न्यायिक प्रक्रिया के तहत पद पे रहते हुए काम कर रहे हैं या सार्वजनिक जीवन में रहते हुए काम कर रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस is also known as universal, we can say the universal justice or universal principles that must be followed at the time of the giving of any order, any direction, any judgment. Because of that, if we will follow the principle of natural justice, and principle of natural justice is mandatory in all spheres of life, that may be of judiciary, that may be of administrative, quasi-judicial, quasi-administrative, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करना अति आवश्यक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के पालन के बगैर आप किसी भी न्याय को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। न्याय व्यवस्था के सुनिश्चित करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम कहते हैं इट सिग्निफाइज द फंडामेंटल रूल्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर। मीन्स द टर्म नेचुरल जस्टिस, द टर्म नेचुरल जस्टिस signifies the fundamental principles of judicial proceeding जुडिशियल प्रोसीडिंग मीन्स किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाना बहुत जरूरी है। इट हैज बीन डिफाइंड टू मीन फेयर प्ले इन एक्शन। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड फेयर प्ले इन एक्शन, fair play in action, fair play in action. According to Whittaker, the principle of natural justice with those fundamental rules, the breach of which will prevent justice from being seen to be done. According to Lord Whittaker, according to Lord Whittaker, he has been stated the principle of natural justice were those fundamental principles. The principle of natural justice the principle of natural justice The principle of natural justice were those fundamental principles those fundamental principles those fundamental principles the breach of which
the breach of which the breach the breach of which the breach of which will prevent justice from being seen to be done. Seen to be done. To be done. Means fundamental rules. नेचुरल जस्टिस विद दोज फंडामेंटल रूल्स, जो सिद्धांत है नेचुरल जस्टिस का, वह मौलिक नियम है और जिसके उल्लंघन से क्या होता है, न्याय दिखता नहीं है, न्याय होते हुए नहीं दिखता है. मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर दोज फंडामेंटल रूल्स, एंड इफ यू ब्रीच द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, द जस्टिस can have, but it doesn't seem to be done. दिखता नहीं है जस्टिस. That's why principle of natural justice is very essential in every judicial proceeding, in every administrative proceedings, and it is mandatory to all the officers, all the judges, all the persons, those who are holding the important posts, that may be in political also. The principle of natural justice must be followed by all the persons, those who are holding the important position, important portfolios, important office bearers. And if you follow the fundamental rules of principle of natural justice, means the person in front of you may feel that you are trying to ensure justice with him or her. अगर आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन करते हुए प्रक्रिया को संपादित करते हैं, तो ऐसा एहसास सामने वाले को होगा कि आप उसके साथ न्याय कर रहे हैं, न्याय होता हुआ दिखेगा भी उसको. तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाना बहुत जरूरी है. इट इज ऑल्सो नोन एज डिवाइन लॉ. इट इज ऑल्सो नोन एज डिवाइन लॉ. डिवाइन लॉ. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के. वे कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के दो सिद्धांत हैं. नंबर 1, नेमो. नंबर 1, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. नंबर 1, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ. नेमो जुडेक्स इन causa sua. No one can be judged in his own case. No one can be judged in his own cause or doctrine of bias. It includes also doctrine of bias. Doctrine of bias. BIAS. Number 2, Audi Altram Party. Audi Altram Party. PARTM. Right of hearing. Right of hearing. These are the two important principles of natural justice, and those principles must be maintained
as a fundamental rules in any proceeding. And if you follow the principle of natural justice, it means that you are obeying the divine rule, universal principles of any proceeding. And the person to whom you are giving the justice, that very justice seems to be done to that particular person, and the masses shall go in society and to the common mass, that shall be very much positive if you follow the fundamental rules of principles of natural justice in any administrative actions, in any judicial proceedings, in any political action. It means, और we can say, मैं ये भी कह सकता हूँ, अपने सार्वजनिक जीवन में भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पर यदि आप काम करने की पद्धति क्या दी है, तो आप की स्वीकारोक्ति सर्वांगीण होगी। सर्वांगीण स्वीकारोक्ति के आप हकदार होंगे और व्यक्ति का बहुतायत जो संख्या है वो यही कहेगा कि इनके द्वारा दिया गया न्याय वो बहुत ही अच्छा और न्याय होते हुए दिखता है, ऐसा प्रतीत होगा। तो आज मैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की इंट्रोडक्शन पर चर्चा किया। कल मैं आपको चर्चा करूंगा नेमो जुडिस इन कॉजस सुआ, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। पहला डॉक्टर ऑफ बायस, पहला नेमो जुडिस इन कॉजस सुआ मीन्स कोई भी व्यक्ति अपने मुकदमे में जज नहीं होगा और रूल अगेंस्ट बायस। तो मैं कल इस पर चर्चा करूंगा। इसमें थोड़ा सा हल्का चर्चा कर दूं। ये कहा गया है इसमें, आप कोई भी व्यक्ति अपने ही मुकदमे में जज नहीं होता है। आप जरा एहसास करिए, अगर कोई व्यक्ति अपने मुकदमे में जज हो तो क्या वो जज होते हुए अपने को लेकर क्या वह अपने लिए तो अपना पक्ष मजबूत कर सकता है और करता है, ऐसा प्रतीत होता है। मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो अपने लिए गलत और सही नहीं समझता है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पहला सिद्धांत है कि यदि आप मुकदमे में, किसी मुकदमे में आप वादी हैं, प्रतिवादी हैं, तो उस मुकदमे का निर्णय एज जज आप नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पहला सिद्धांत। तो एहसास करें कितना अच्छा निर्णय, कितना अच्छा सिद्धांत है। तो टुमारो वी विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नेमो जुडिस इन कॉजस सुआ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।